हेलो एवरीवन, सो आई विल डिस्कस मेंस्ट्रुअल साइकिल टुडे। सो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है ह्यूमन फीमेल में, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल. This menstrual cycle begins at puberty and the onset of puberty is called menarche. This menstruation repeated at the interval of 28 to 29 days, and from one menstruation to the next menstruation, this is called menstrual cycle. This menstrual cycle ceases at the age of 45 to 50 years, and this occurs due to the inactivity of ovary, because that time no ovulation takes place, and that is called menopause. There are different events. There are 3 events in the menstrual cycle, and these events are follicular phase, or that is also known as the bleeding phase. Second is proliferation phase, and the third is secretory phase. During these phases, यूटरस में चेंजेस होते हैं, ओवरी में चेंजेस होते हैं, एज वेल एज फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं. बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द प्रोलिफरेटिव फेज. सो ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज पहले यूटरस में क्या चेंजेस होंगे. सो ड्यूरिंग दिस फेज जो एंडोमेट्रियम होती है थिन होती है, अराउंड 0.5 to 1 mm थिन. एंड जब ये फेज स्टार्ट होती है प्रोलिफरेटिव फेज, एपिथेलियल लेयर इंक्रीज हो जाती है एंडोमेट्रियम की, एंड इनमें ग्लैंड्स भी ग्रो कर जाती हैं इन साइज, ब्लड वेसल्स भी काफ़ी ग्रो हो जाती हैं, एंड ऑलमोस्ट एंडोमेट्रियम बिकम्स 3 to 5 मीटर थिक. जो पहले बहुत थिन थी अब ये ग्रो कर जाती है, यानी थिक हो जाती है. प्रोलिफरेटिव मीन्स इनमें ग्रोथ हो जाती है. तो ओवरी में क्या होता है, ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योर हो जाता है इनटू ग्राफियन फॉलिकल. ओवरी और यूटरस में चेंजेस होते हैं ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ FSH एंड एस्ट्रोजन, एंड दीज टू आर रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. प्रोलिफरेशन फेज 5th से 14th डे तक चलती है, एंड बाय द 14th डे द ग्राफियन फॉलिकल इज फुल्ली मैच्योर्ड एंड द ग्रोथ ऑफ द uterus is completed, and on 14th day ovulation occur. That means that day the ovum or secondary oocyte will be released. So exactly on the 14th day this ovulation process occur. Then next, secretory phase. Secretory phase starts from the 15th to 28th day. 14th day पे ovulation हुआ है, अब 15 से 28th day तक की पीरियड को या टाइम पीरियड को हम secretory phase कहेंगे. During this time in the uterus, the proliferation of endometrium stops and it becomes highly glandular thick. The glands are filled with the secretion and mucus. ये glands में mucus fill हो जाता है, secretions filled हो जाते हैं. 14th day पे ovulation हुआ ग्राफियन फॉलिकल से, तो जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्पस ल्यूटियम, एंड दैट्स वाई इस फेज को हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं. After ovulation, the released ovum is picked up by the fallopian tube, and if sperm is present or available there, fertilization takes place. By 21st day, uterus wait for the fertilized egg. अगर वहाँ पे sperm था तो fertilization हुआ होगा, and uterus wait करता है fertilized egg का, and अगर fertilization नहीं हुआ है then endometrium wall degenerate कर जाती है, and this degeneration occurs up to the 28th day of ovarian cycle, and a new bleeding phase start again, which is the start of new menstrual cycle. And अगर at the time of ovulation sperm present था, fertilization हुआ होगा, and अगर fertilization हो गया that means zygote, and this will not causes the degeneration of endometrium, and this will lead to the pregnancy. That means for 9 months no menstruation. Secretory phase is also called progesteronal phase because the secretory phase depends on the level of progesterone. अगर fertilized एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है देन प्रोजेस्ट्रॉन का कंसंट्रेशन डिक्लाइन कर जाएगा, एंड इफ फर्टिलाइजेशन हुआ है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, देन प्रोजेस्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, सो दो द अमाउंट ऑफ LH एंड FSH डिक्रीजेज, और ये इनएक्टिव हो जाते हैं बिकॉज इनका फंक्शन था ओव्यूलेशन में हेल्प करना एंड फॉलिकल के डेवलपमेंट में. सो प्रेगनेंसी के बाद ना ही तो ओव्यूलेशन होगा और ना ही फॉलिकल डेवलपमेंट होगा, सो दैट्स वाई ये इनएक्टिव हो जाते हैं. एंड जो पॉइंट हमने फर्स्ट आपको बताया था दैट वाज द ब्लीडिंग फेज, अब हम उसको डिस्कस करेंगे हाँ लास्ट में.
सो फॉलिकुलर फेज और द ब्लीडिंग फेज, ये फर्स्ट डे स्टार्ट होती है एंड 4th डे तक चलती है. ड्यूरिंग दिस टाइम जो एंडोमेट्रियम वॉल थी यूटरस की, ये रैप्चर कर जाती है अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. एंड जब एंडोमेट्रियम रैप्चर हो जाती है, because it was filled with the blood vessels and mucus, so these mucus and blood vessels, they expelled out through the vagina, and that's why we called it a bleeding phase. And this rupturing of endometrium occurs due to the low concentration of luteinizing hormone and progesterone. Duration of bleeding phase is about 4 to 5 days. फेज के बाद अगेन प्रोलिफरेशन फेज स्टार्ट होगी एंड देन प्रोलिफरेशन के बाद सिक्रेटरी फेज, एंड अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ वापस से ब्लीडिंग फेज कंटिन्यू रहेगी. दैट मीन्स एक के बाद एक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहती है. ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं in this process, and these hormones are, the first one is gonadotropin releasing hormone, that is called GnRH, then LH, that is luteinizing hormone, FSH follicular stimulating hormone, progesterone and estrogen. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये सिक्रीट होती है बाय द हाइपोथैलेमस, एंड देन GnRH ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH. FSH का फंक्शन क्या है? FSH ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्राफियन फॉलिकल डेवलपमेंट इनसाइड द ओवरी, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये स्टिमुलेट करता है टिश्यूज़ को ओवरी में टू प्रोड्यूस द एस्ट्रोजन हार्मोन. अभी एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है? एस्ट्रोजन यूटेराइन वॉल को रैप्चर करता है, रिपेयर करता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, एंड ये प्रोड्यूस करता है, ये प्रिपेयर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू प्रोड्यूसेस द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इट हेल्प्स इन द ओव्यूलेशन. अगर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन नहीं होगा देन प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन भी नहीं होगी, एंड इट कॉजेज द ग्राफियन फॉलिकल टू डेवलप इनटू कार्पस ल्यूटियम. जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल के रिमेनिंग पार्ट कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कार्पस ल्यूटियम. कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स और प्रोड्यूसेस द प्रोजेस्ट्रॉन. अभी प्रोजेस्ट्रॉन का क्या फंक्शन है? प्रोजेस्ट्रॉन ये इनहिबिट करती है FSH के प्रोडक्शन को, एंड FSH प्रोड्यूस नहीं होगा, दैट मीन्स फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ यूटरस फॉर द इम्प्लांटेशन. Next is fertilization and pregnancy. I'll discuss in the next video. Thank you.